Good evening, students. How are you all? And in today's video, I will let you know just how to write application for a job. We have done of 50-50 words, both the questions, question number 1 my previous videos. And in the second number, question number, formal and informal invitation. Now, question 3 will be of different kind of letters. And out of those letters, the first one I am going to take it application for a job. In this application for a job, you are going to have a 1 mark for the format, 2 marks for the content, and 2 marks for the expressions. And the word limit will be 100 to 120 words, and 100 to 120 words, and it will be of 5 marks. It will be of 5 marks. And first of all, you should know what do you mean by application for a job. Application for a job means that passing out your plus 2, you will be step into any course, and after joining any course or any diploma, and definitely you will be looking for a job. And writing an application is very, very important. That how do you write? Why is there necessity for the CBSE people to introduce application for a job in your syllabus? बेटा एप्लीकेशन फॉर ए जॉब को लिखना एक बहुत बड़ा स्किल है. Suppose you know now there is a too much employment in our society, that in our India, and what is happening all around us कि एक job के लिए thousands in lakhs the candidates are there. And when you people write an application for a job, and if you skip any one important information, it means that you are be out from the job. You won't get a call for an interview. The reason behind that, you don't have a time. If you have the full entries for writing the application for a job, then you will get a call for an interview. Otherwise, it stands cancelled. So that's why CBSE people, they have introduced application for a job. It is very, 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 very important that how do we write application for a job, that what are the entries they are required just to गिव अ प्रॉपर शेप टू द एप्लीकेशन फॉर ए जॉब. बेटा ये बहुत ज़रूरी होता है. टू द पॉइंट वी हैव टू राइट. और जो इसमें पीछे हम इसमें CV, करिकुलम विटाई वी कॉल इट, इसको हम करिकुलम विटाई बोलते हैं, रेज्यूमे भी बोलते हैं, और इसको हम बायोडाटा भी बोलते हैं. और बायोडाटा में, रेज्यूमे में अगर कोई भी एक चीज़ आपकी मिसिंग होती है, तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू बी अ लूजर इन द लाइफ, दैट यू वॉन्ट बी एबल टू, यू वॉन्ट बी एलिजिबल या एप्लीकेंट फॉर दैट जॉब. They will exclude you. They will make you out. They won't give you a call. They just put cross on your application. Then you keep on applying. So that's why 100% information, whatever is required, is very, very important. And today in this video, I will teach you that what are the important entries in your resume or CV, or you can say that curriculum vitae or resume or biodata is required. Beta, that I will speak very, very slowly. First of all, I will explain you that how do we write application for a job. I will be discussing that what is the format for that. Why to lose 1 mark? Then 2 marks for the content and 2 marks for the expressions. And what comes in the expressions? Your body of the application. Even content means is a part of your format. And today I am here just to teach you, and it will be of 5 marks. And you need to grab. आपको वो 5 नंबर छोड़ने नहीं है. I will tell you what the content is required. If you will write your application like that only, and that definitely you will score 5 on 5. Now let's begin with that what is the format of writing application. Now, first of all, job, you have to draw a line in your sheet. Okay, now first of all, that you have to write, the most important point is, first of all, we write sender's address. You can note it down in your notebook side by side. First point is your sender's address. मीन्स जो इस एप्लीकेशन को लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा. देन लीव अ लाइन, एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी डेट, कि जिस तारीख को दैट यू आर अप्लाइंग फॉर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब. Suppose it is May, first write month, then May 10 date, comma 2021. Fine. Then again we leave one line. Then third point comes your addressee's address. Addressee's address. Addressee's address. Then after addressee's address, fourth point comes your salutation. Salutation means respected sir. Salutation will come.
Don't forget to begin with that. First of all, sender's address. Suppose if I am applying, I won't be writing my name, only my address. Then comes your date. Then addressee's address, to whom are we writing? Suppose we are writing to the manager of the company, to the principal of the school. It depends upon the nature of a job you are going to apply. Okay. Then comes salutation. Salutation means respected sir or dear sir or ma'am. Anything you can write. Clear? Then comes your fifth. The most important thing is it comes your subject. What is your subject for writing this application for a job? Suppose you are applying, so what you will write here? Application for example, I have to apply for PGT English. What I will write here? Application for the post of a PGT English. Yeah, suppose for sales executive, the application for the post of a sales executive. I think up to these 5 points are clear to you. Once again, I repeat for you people. First one is sender's address. Second comes your date. Third point comes your addressee's address. Don't forget to write addressee's address. अगर आप इनमें से बेटा कुछ भूल जाते हो तो आपकी एप्लीकेशन को काट दिया जाता है, वहाँ पे कैंसिल लिख दिया जाता है. देन नेक्स्ट कम्स सैल्यूटेशन एंड द फिफ्थ पॉइंट कम्स सब्जेक्ट. आई होप सो यू पीपल मस्ट हैव रिटन. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट. Then sixth point will be, next point is body of the application. Body of the application. Body of the application. Then after body of the application, I will tell you कि उस body के अंदर क्या लिखेंगे. Then comes your complimentary clause. Complimentary clause को क्या बोलते हैं? Yours. Apostrophe नहीं आएगा. Only yours faithfully. Yours faithfully will be there, and after faithfully what will come? Your name. Clear? And after name anything will come? No, nothing will come after name, your designation, but the next point will come ENCL. What is ENCL? Means enclosure, कि आप इस एप्लीकेशन के साथ क्या अटैच कर रहे हो. दैट विल बी योर CV यू कैन राइट, और बायोडाटा, और रेज्यूमे, एंड what is required? Your testimonials. 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 Clear? This one is clear, I hope so. Then the next one is, the next part is given your and testimonials. Once again I repeat it. First point is your sender's address, then comes date, then comes addressee's address, then comes salutation, subject, body of the application, complimentary clause, we call it yours faithfully, then comes your name, after name will come your enclosure. Enclosure means जो आपने इस एप्लीकेशन के साथ लगाया, वो क्या लगा रहे हैं आप? बायोडाटा, या आप CV भी लिख सकते हैं, कैरिकुलम विटाए बोलते हैं इसको, या फिर क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है कि दैट राइट CV या राइट कैरिकुलम विटाए, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि व्हाट इज CV. CV मीन्स कैरिकुलम विटाए, बायोडाटा और रेज्यूमे, and testimonials. I hope so it's clear to you. It's clear to you. Now the most important thing is, how do we write body of the application? Body of the application. That is very, very important, students. If you want to note it down in your notebooks, you can note down. सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं कि मैंने आपकी एडवर्टीजमेंट पढ़ी, उस एडवर्टीजमेंट के, क्योंकि आपको जो ये लेटर आएगा इट कैन बी बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल स्टिमुलस. वर्बल का मतलब क्या होता है कि आपको ऊपर कुछ वहाँ इंफॉर्मेशन दिया होगा. कैसे इंफॉर्मेशन दिया होगा कि सपोज DAV पब्लिक स्कूल मोगा रिक्वायर्स, आपको वहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट दी होगी और उसमें लिखा होगा कि आपको वहाँ पे एक स्कूल के लिए PGT इंग्लिश चाहिए, है ना, आप ये हैं वैसे हैं, आपके पास फ्लुएंसी होनी चाहिए, 5 years का एक्सपीरियंस, मतलब कुछ इस तरह की आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी. उसको देखकर सपोज आपको लगता है कि दैट आई एम एलिजिबल फॉर दैट जॉब,
कि दैट आई एम फिट फॉर दैट जॉब, तो फिर आप उसमें लिखेंगे बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, व्हाट यू विल राइट इन रिस्पॉन्स. आपने इसको शुरू कैसे करना है, फर्स्ट पैराग्राफ, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, फुल यू विल राइट एडवर्टीजमेंट. कहाँ देखिए आपने, इन द ट्रिब्यून. आपने द टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा या फिर आपने इसको ट्रिब्यून में देखा. ट्रिब्यून किस तारीख को देखा, डेटेड सो एंड सो. ओके, फिर वो आप क्या लिखते हो कि मैं आई विश टू ऑफर, आई विश टू ऑफर माई services, I wish to offer my services for the post of so and so. कहाँ पर, in your prestigious institution, कि मैं आपके इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको ये जो एप्लीकेशन लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, दैट इज आप कैसे इसको बॉडी ऑफ दैट एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, कहाँ से, फर्स्ट पैराग्राफ, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द ट्रिब्यून डेटेड आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जेक्टिव इन योर कंपनी, रिनाउंड कंपनी, इन योर प्रेस्टिजियस कंपनी, इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन. पहले वाले में तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगा, इसमें सिर्फ आपने ये लिखना है कि मैंने इस तरह से आपकी ट्रिब्यून में रिस्पॉन्स देखा था और उसका रिस्पॉन्स देते हुए आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर द पोस्ट एंड सो. दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ. देन इन द सेकेंड पैराग्राफ अगेन यू विल बिगिन फ्रॉम हेयर. इसमें आप अपने बारे में 2-4 सिर्फ क्वालिटीज लिखेंगे. कैसे, I am, you can just listen it, that I am a hardworking, fine, I am a hardworking and honest, yeah, sincere person, okay. And you can just write about 2 or 3 qualities about yourself, that I have a passion about teaching, I wish to make a difference, कि मैं दुनिया में कुछ डिफरेंस करना चाहता हूँ इन द लाइव्स ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन. जो भी आप इसके बारे में 3-4 लाइनें लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट. मीन्स आई एम वेरी सिंसियर, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट, I have a love for teaching, I want to make a difference in the society. कुछ भी, it depends upon the nature of the company. Okay, this is your second paragraph. Clear? Now then the last third paragraph, what you will write? I am enclosing. ये ज़रूर लिखना है बेटा आप लोगों ने कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ. मैं इस एप्लीकेशन के साथ enclose कर रही हूँ. What I am attaching, क्या मैं enclose कर रही हूँ? My biodata. Okay. Here with, किसके लिए? Biodata. You will write here with, for your kind reference, and then you can write 1 or more 2 lines that I shall be available for an interview on any day of your convenience, कि जिस दिन आप मुझे बुलाएंगे उस दिन मैं वहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा या फिर हो जाऊँगी. एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, आई एश्योर यू, इफ़ आई गेट सिलेक्टेड तो देन आई विल वर्क विद माई अटमोस्ट, मीन्स कंप्लीट डिवोशन के साथ एंड सिंसेरिटी के साथ. दैट्स इट. फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे? होपिंग फॉर अ. लास्ट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और मुझे बुलाएंगे. फेवरेबल रिस्पॉन्स. ठीक है. होपिंग फॉर वंस अगेन आई रिपीटेड बेटा, कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ्स में आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपको कहाँ से पता चला. दूसरे में अपने बारे में 2-3 लाइनें लिखेंगे कि मैं बहुत पैशनेट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ. इसमें भी आप लाइन ले सकते हो कि अगर मुझे सिलेक्शन हो जाती है तो मैं बड़ी अटमोस्ट डिवोशन के साथ करूँगा या काम करूँगी. इट इज़ अप टू यू द वे यू राइट इट. और लास्ट पैराग्राफ में आप ये मत लिखना, इसको भूलना नहीं लिखना बेटा, आई एम एनक्लोजिंग
enclosing my biodata herewith for your kind reference. और ये भी लिखेंगे that I shall be available for an interview on any day of your convenience, कि जिस दिन आप मुझे बुलाएंगे उस दिन मैं उसमें हाजिर हो जाऊंगा या हाजिर हो जाऊंगी. क्लियर? दिस इज व्हाट इज क्लियर टू यू. और लास्ट में जैसे मैंने आपको बोला था ENCL के बाद क्या लगाना है आपने, बायोडाटा एंड टेस्टिमोनियल्स. अब आपका जो मेन आता है इसमें बायोडाटा. अब उसमें आपने बायोडाटा में क्या क्या लिखना है बेटा, अब आपने बायोडाटा में क्या क्या लिखना है, 13 थिंग्स आर देयर, दैट इज योर बायोडाटा. 13 थिंग्स आर देयर. अब मैं एक एक करके बोलूँगी, आप लोग अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. सबसे पहले आप लिखेंगे नेम, अपना नाम लिखेंगे. नंबर 2 में आप लिखेंगे अपने पापा या मम्मी का नाम, फादर्स नेम. ओके. थर्ड वन में आपका आ जाएगा आपका एड्रेस क्या. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आपने एड्रेस लिखना भूल गए तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी. अगर आपने अपना फादर्स या मदर्स नेम नहीं लिखा तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी. क्लियर? अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका क्या आता है, आपकी एज कितनी है. एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपनी एज नहीं मेंशन करोगे, सपोज वो वाली जो जॉब है वो है शायद 25 साल की उम्र के बच्चों के लिए या 30+ का है और आप हार्डली 20 के हो, तो फिर उसमें इसका मतलब स्टैंड कैंसल्ड, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ और उनका भी टाइम वेस्ट होगा. तो एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन मैरिटल स्टेटस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इधर यू आर मैरिड और नॉट. मैरिटल स्टेटस कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि कुछ जॉब्स होती हैं वो उसमें मैरिड चाहिए होते हैं, कुछ में अनमैरिड चाहिए होते हैं. और आप लोग क्या करते हो, कई बार न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते और वहाँ लिख देते हो मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, और जबकि वो मैरिड की होती है. तो यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल बिफोर राइटिंग एनी एप्लीकेशन. क्लियर? जो आपका 6th पॉइंट है बेटा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर नेशनैलिटी, कि आपकी नेशनैलिटी क्या है. व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, आप क्या हैं, आप इंडियन हैं. क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होती है जहाँ पे वो रिकमेंड किसको करते हैं, अपने इंडियन बच्चों के लिए. क्लियर? नाउ द 7th पॉइंट इज, आई एम रिमूविंग इट. नाउ द 7th पॉइंट कम्स, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है. व्हाट इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने करा क्या हुआ है, आर यू एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट. देन कम्स योर, आपके पास अगर आप पहले से पोस्ट में है तो उसमें कितनी आपका एक्सपीरियंस है. देन नेक्स्ट कम्स 9th वन इज कि दैट आपका एक्सपीरियंस है. उसके बाद सैलरी, अगर आप उसमें हैं तो आपकी सैलरी कितने लेते थे, आपकी पहले जॉब में कितनी सैलरी थी. और 10th में आपका आएगा सैलरी एक्सपेक्टेड, कि अगर आप इसमें आ गए जॉब में तो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेड क्या होगी. तो इसमें भी मैंने पहले अपनी उसने बताया था वीडियो में, यू कैन राइट नेगोशिएबल. नेगोशिएबल का मतलब होता है कि कोई नहीं, जब हमारा टाइम आएगा हम आपसे बात करेंगे तो हम ऊपर नीचे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. दैट इज़ नेगोशिएबल. क्लियर? देन द 11th पॉइंट कम्स, व्हाट इज़ द, आपकी हॉबीज़ क्या है बेटा. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं. देन उसके बाद आपका जो 12 नंबर आता है, देन नेक्स्ट कम्स, व्हाट कम्स योर नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ योर नेम, रेफरेंस, यू कैन से रेफरेंसेस एड्रेस. रेफरेंसेस एड्रेस, व्हाट इज रेफरेंसेस. सपोज इन केस आपने कोई उसमें नंबर लिखा, वो नंबर कॉल कर रहे हैं लेकिन आपका नंबर नहीं लग रहा, तो इसमें आप अपने पड़ोसियों का जिसका आप देना चाहते हैं, किसी अपने रिलेटिव का या नोन का या नेबर का, तो आप इसमें टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज, व्हाट इज दैट, कैन एनीवन टेल मी इफ़ यू हैव एनी स्कॉलरशिप और प्राइज वॉन, कि आपने कुछ लाइफ में कोई प्राइज भी वॉन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, या प्राइज वॉन, ये आपकी उसकी एप्लीकेशन में ऐड कर देता है, प्राइज और स्कॉलरशिप वॉन. ऑल दीज एंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिज्यूमे. अगर बेटा आपकी इसमें से कोई एक भी, इमेजिन करो कि अगर आपने वहाँ पे फादर का नाम नहीं लिखा, एड्रेस नहीं लिखा या इनकम्प्लीट लिखा, इट स्टैंड्स कैंसल्ड, आपने एज नहीं मेंशन की और आपको ये नहीं पता कि वो वाली पोस्ट किसी और के लिए थी और आप वेट करते रहो कि मैंने तो अप्लाई किया है, आई विल गेट अ कॉल, जबकि वो तो आपकी यू आर नॉट लाइकली टू बी फॉर दैट, यू कैन से एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट. आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन वो पोस्ट अनमैरिड के लिए है, आपने कुछ लिखा ही नहीं है, और बाई चांस आप अनमैरिड भी हो तो उन्होंने कौन सा आपके पास टाइम होता है, उनके पास दे डोंट हैव अ टाइम टू जस्ट गिव यू कॉल कि बेटा आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दे वॉन्ट आस्क यू, है ना, दे विल सिंपली कैंसिल योर एप्लीकेशन. नेशनैलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हाउ मच एक्सपीरियंस, या यू आर अ फ्रेशर, ये बहुत मैटर करता है. आपकी कितनी सैलरी आप ले रहे हो,
कितनी आप चाहते हो, रेफरेंस नंबर, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, कोई एनी स्कॉलरशिप और प्राइज वन, तो ऑल दीज एंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट. तो दिस इज हाउ वी राइट एप्लीकेशन फॉर ए जॉब. अब मैं आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन दूंगी, देन यू पीपल कैन प्रैक्टिस. Before sending another video, I'll be giving you one question to practice. You just practice. Keep on practicing the writing skills and definitely that you will become a master of those skills. ठीक है बेटा. Thank you. Have a nice day.